assessment, and also there are the different types of test जो हम use करते हैं for assessing the personality. सबसे पहले we're going to discuss why do we need assessment for personality and what exactly we wanted to understand by assessment. ऑल्सो दी डिफरेंट जो हमारी थ्योरी निकल कर आती है फ्रॉम द असेसमेंट, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्रॉम दी थ्योरीज जो एक एमर्ज हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे. सो पहले विदाउट एनी डिले आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ मेक अ शॉर्ट नोट, एक अपना नोटबुक के अंदर थोड़ी थोड़ी जो आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि से आप साथ साथ अगर सेशन के बना लोगे तो आपको वो हेल्प हो जाएगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पर्सनैलिटी असेसमेंट से बनते हैं रिगार्डिंग द रॉशेश इंक ब्लॉट टेस्ट विद दी MMPI समथिंग करके एक हमारे पास है पर्सनैलिटी का, तो वो हम समझेंगे. सो वट एवर द डेफिनेशन वुड बी देयर, वट एवर द नेम ऑफ द पर्सन कंप्लीट एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट, तो आपको वो लिखना है ताकि इन फ्यूचर अगर आपके एग्जाम में वो आए तो यू वुड एबल टू आंसर. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन टू यू. दिस इज द स्क्रीन. One second. Okay, is this visible? The assessment of personality. One second. Assessment of personality. Is this visible? Yes, ma'am. Oh, okay. So this is related with the unit 7. Unit 7 से related है, लेकिन unit 7 में there is only a short topic जिसमें we are only focusing on the assessment. But what are the different types of personality assessment? तो उनके बारे में we're going to discuss in detail. तो one by one करके समझेंगे. सबसे पहले there is a basic aspect related with the assessment, that why do we need assessment. So सबसे पहले ये consider करो इस topic को कि assessment of personality is what? The assessment of personality is basically refers to the measurement of personal characteristics of an individual, because whenever we are assessing the personality, and we have already discussed in our personality का theories जो हमारे यूनिट 3 में आया है, जिसमें we were saying that there are different traits and there are different characteristics that individual bear. हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना एक इंडिविजुअलिटी है, सर्टन तरीके के ट्रेट्स है जो उसको यूनिक बनाते हैं. So whenever we are assessing the personality of the individual, so we are trying to assess the personal characteristics. हम एक personal characteristics को समझना चाहते हैं, because we wanted to gather some information of the trait about the characteristics. So for that we were gathering the information जिसमें we were taking the help of interview या फिर psychological test. With the n number of psychological tests that helps the individual to assess the personality. तो उस केस में assessment is what? That if we are assessing the someone personality, so we are trying to see and gather the information regarding the characteristics of the individual. There are the different aspects related with the personality assessment. दो तरीके के पर्पस है, please note it down, and also please note it down the methods of personality assessment. सबसे पहले कह रहा है personality assessment is what? There are the two serve purposes, एक तो theoretical and practical. Theoretical तरीके से we are trying to understand that how the personality are divided in the certain dimensions and what are the different aspects. जिस तरीके से we discussed about intelligence theory, so we were discussing the intelligence theory from the theoretical perspective, because we were having the basic knowledge of theories, जिसमें हमने अगर गिलफर्ड थ्योरी के बारे में समझा है, तो गिलफर्ड का SOI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इसमें 3 डायमेंशंस है. सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द theoretical aspect. तो similarly, whenever there is a need to understand the personality of the individual, so we are understanding the personality of the individual by two themes, the theoretical and practical. Theoretically, the personality assessment provides a knowledge about the different dimensions. कई तरीके की जो हमारी dimensions है उसकी knowledge वो देने की कोशिश करता है. Apart from this, there is a practical aspect. Practical aspect of the personality assessment is to know the strength and the weaknesses, because understanding the personality is not the sufficient for us, but understanding the personality also with the understanding, taking the measures to improve the weaknesses, वो भी इसमें involve है, तो वो practical aspect से related हो जाता है, very important aspect. Apart from this, whenever we say the personality assessment is theoretical, so theoretical where that provides the impetus to research on personality, क्योंकि theory समझते हुए हम एक research का एक part बना सकते हैं. अब जैसे कि जब आप dissertation करोगे, whenever you will get the opportunity to enroll yourself in a PhD coursework,
तो during the PhD coursework they will make you understand कि how to understand the theoretical framework for the particular thesis for the particular research. तो उस theoretical framework में क्या है कि कहाँ से वो topic emerge हुआ है. तो जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है ये एक तरीके से आपको रिसर्च का भी मदद करता है, क्योंकि थ्योरी पे बेस ही रिसर्च होगा. पहले से कोई एविडेंस नहीं है तो रिसर्च आपकी नहीं हो पाएगी. जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो आपको पता है कि लिटरेचर रिव्यू जो आप कर पा रहे हो वो किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा, जो ऑलरेडी उसके एविडेंसेस होगी कि वो पहले से वो टॉपिक डिस्कस किया गया है किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी फॉर्म में. तो वही कहा गया है कि पर्सनैलिटी development and that provides the information about the nature, and also it provides the impetus to research on personality and to help to develop the new theories about the personality, कि हम नई तरीके की theories को भी यहाँ पे develop करते हैं. ठीक है, यहाँ पर based on this information there are 3 headings. कौन कौन सा? personality inventory, projective techniques and observational method. Please note it down the 3 headings कि जिसमें हम personality assessment को divide कर रहे हैं. अंडर द फर्स्ट कैटेगरी वी आर सेइंग द पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और उसके अंदर भी कई तरह के टेस्ट है कि जो पर्सनैलिटी की इन्वेंट्री क्या है, कौन से टेस्ट हमारे इंक्लूडेड है. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज अनदर काइंड ऑफ असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन मेथड इज अनदर. तो आपको ये लिखना है तीनों चीजें. अब इसी के अंदर आई विल सजेस्ट यू कि इसी में ना आप क्या करें, एक तरीके का टैबुलेटेड फॉर्म में एक सेपरेटेड कॉलम्स बना लीजिए. एक पेज है जैसे कि सीधे पेज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तीनों पार्ट्स में. सो वट एवर द थियोरीज या टेस्ट जो एक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा तो आप उसके नीचे उसका नेम लिखते जाना. सिमिलरली अप्लाइज फॉर द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड फॉर द ऑब्जर्वेशन मेथड. ये समझ आ रहा है किस तरीके से मैं आपको नोट्स मेकिंग कह रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू सेपरेट द पेज within 3 columns, and in each column you need to prepare the short note related with the personality inventories, projective techniques and observation method. अब उसके नीचे क्या क्या आएगा तो आप उसको मेंशन करना है. सबसे पहले there is a personality inventory. What does the meaning of personality inventory here? यानी कि व्यक्तित्व सूची यानी कि जिसमें एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है एक पर्सनैलिटी को असेस करने का. So here they will provide you some statements. हमेशा इस तरीके के इन्वेंट्रीज में क्या होता है, बिकॉज यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स बाय गिविंग देम सम स्टेटमेंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ द एग्रीमेंट, व्हाट द स्टेट ऑफ एग्रीमेंट जो वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अपना व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए वी आर यूजिंग some sort of statements related with the belief, related with the degree of agreement or non agreement. तो वो यहाँ पर अपना जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको वो मार्क करता है. So for example there are some examples like do you have problem in sleeping. अगर आपको क्या प्रॉब्लम है स्लीपिंग में तो आप उसमें yes या no लिखेंगे. Similarly डज योर पेरेंट्स गिव यू द एडुकेट प्रोटेक्शन, क्या आपके पेरेंट्स आपको एडुकेट प्रोटेक्शन देते हैं, तो येस या नो. तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. सो हियर द पर्सन में डिफर ओवर द रिस्पॉन्सेज एंड दे गिव फॉर ईच ऑफ द अबव क्वेश्चंस एज इट डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड लाइफ सिचुएशन. जो आपके अनुसार है, जो आप सोच रहे हैं आप उसको उसी के अकॉर्डिंग मार्क करेगी. ऑल्सो यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर देखो तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्लीज रीड ईच द स्टेटमेंट्स केयरफुली and then mark the appropriate responses below. For each item select the answer that best represent the personality characteristics of your wife. तो आपके वाइफ के जो भी आप वो सोचती है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको उसके अकॉर्डिंग जज करना है. तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए लाइक शी गेट्स अपसेट इजली, शी enjoys being part of a group, she likes to solve the complex problems, she believes the other have the good intentions. So you need to mark if you believe that your wife gets upset easily, so you will mark 5. मतलब you strongly believe कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है. बट अगर आप ये बिलीव नहीं करते तो यू विल से द स्ट्रांगली डिसएग्री और स्लाइटली डिसएग्री होगे, वो आपके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, ये समझ आया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम एज फार नाउ? That personality inventory we are using because we wanted to understand the likes and dislikes of the person. We wanted to understand the person, the judgment, the related with the statement, that how the person perceive the statement and what kind of the responses he or she is giving,
as per the experiences and his own life situations. So that comes under the personality inventories. वो मैम personality inventories में इन्वॉल्व है. हाँ बोलो. मैम ये एक चेकलिस्ट के तरीके में है क्या? चेकलिस्ट के अंदर हाँ कह सकते हैं, बट देर इज अ जैसे कि लिकट स्केल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, लिकट स्केल जो 1 से लेके 5 तक होता है, तो इसी तरीके यस से मैम। है. तो आपको एक क्वेश्चनर दे देते हैं सब एक तरीके का, मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर. ये पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज होती है. क्वेश्चनर किस तरीके से कि विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको उसमें क्या आपका रिस्पॉन्स है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको 1 से लेके 5 तक मार्क करते हो. जिस तरीके से सर्वे आपसे भरवाते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, तो ये उसी फॉर्म में होता है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी. बस नाम है इसका पर्सनैलिटी इन्वेंटरी बिकॉज वी वांटेड टू असेस द समवन पर्सनैलिटी, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहते हैं. ठीक है, इज अ यस काइंड ऑफ क्वेश्चनर सिंपली. ये आपका सबसे पहला है. इसी के अलावा the another is what the Kettle 16 PF scale. Kettle 16 PF scale that also comes under the personality inventory. This is also a type of personality inventory. Why? अब इसमें देखते हैं क्यों. हमें यहाँ पे हम स्कोर दे रहे हैं. लाइक कैटल्स का 16 पीएफ द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर स्केल जो डेवलप किया है कैटल के द्वारा, ये इस इन्वेंट्री में हम एक टेक्निक को यूज करते हैं ऑफ फैक्टर एनालिसिस, जैसे कि आपको पता है. सो कैटल इंक्लूडेड द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट: टेम्परामेंटल ट्रेट, एबिलिटी ट्रेट एंड डायनेमिक ट्रेट. टेम्परामेंटल ट्रेट क्या है? जो हमारे टेम्परेरी तरीके से है, जो एक तरीके से हमारे मूड रिलेटेड है, हम कैसा फील करें. एबिलिटी ट्रेट है हमारी क्षमता वाले. डायनेमिक जो चेंज हो रही है. तो द इन्वेंट्री मेजर्स द 16 बाइपोलर ट्रेट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड इन द टेबल, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर. these 16 factors are called the first order factors. On the basis of the meaning of this factor, हम यहाँ पर उनको मार्क करें. अब जैसे कि आप यहाँ पर एक ग्रेडिंग सिस्टम है, एक लेटर सिंबल से आपको यहाँ पे डिनोट किया गया है. तो अगर आप आउट गोइंग है तो उसके बेसिस पे हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पे आप ए, अगर आप यहाँ पे लो स्कोर के बेसिस पे दे रहे हो तो उसमें रिजर्व्ड है. तो एक सिंबल्स यहाँ पर होते हैं, लेटर सिंबल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आप उसके परफॉर्मेंस को मतलब उसके जो ट्रेट वो फील कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग वो उसको मार्क्स देते हो, या एक इंडिविजुअल खुद भी अपने आप को ऐसे मार्क्स दे सकता है. इन एडिशन टू दिस 16 फैक्टर्स, कैटर आल्सो आइडेंटिफाइड द 11 सेकंड ऑर्डर factors which are equally important as personality traits. So these are included what? The anxiety, extroversion, independence, neuroticism, leadership, marital adjustment, subjectivity, altruism, सेल्फ डिसिप्लिन, डेलिब्रेशन एंड कंसाइज. ये जो कंसाइसनेस की बात की जा रही है विच इज रिलेटेड विद द अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल. सो आपको ये मार्क करने हैं कि अपार्ट फ्रॉम द 16 जो 16 पीएफ आपको कैटल का जो पर्सनैलिटी में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसी के अंदर आपको 11 वाले फैक्टर्स और जोड़ने हैं. इसके बेसिस पे हम यहाँ पर इक्वली यहाँ पे देखते हैं कि पर्सन का कितना लेवल ऑफ एंजाइटी या एक्सट्रोवर्जन है. तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल में है. फ्रॉम द कैटल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री and the identification of the factor, the big 5 personality traits called as the global traits have been delineated, which are neuroticism, extroversion, agreeableness, openness to experience and concise. जो आपने 5 factor theory समझी थी, what was the name of the 5 factor theory? Can you answer? कोस्टा मैक्री. हाँ, कॉस्टो मैक्रे ने दिया था. कॉस्टा मैक्रे was a main exponent who gave you the 5 factor theory. And how we are denoted, किस तरीके से उसको एक्रोनियम यूज कर रहे थे? मैम ओशन. Very मैम good. हाई Ocean. O stands for what? Openness. ओपननेस. E stands for extroversion हमारे पास. इसके अलावा C जो हमारे पास था वो कंसाइंस की बात कर रहा था. ठीक है. A हमारे पास अग्रीएबलनेस था. N यहाँ पे न्यूरोटिज्म था. सो ये भी ध्यान रखना. तो ये जो कैटल अगर हमने कर दिया 16 पीएफ, अपार्ट फ्रॉम द 16 पीएफ दे आर द एक्सटेंशन थ्योरी, जो आपका ओशन थ्योरी आ जाता है. तो ये सारे आपके ट्रेड्स रिलेटेड है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज रिलेटेड है, जो वी आर असेसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल by having the scale and also with the statements. तो वो दोनों इन्वेंटरीज हमारे इसमें इन्वॉल्व होती है. ठीक है. आपको क्या लिख रहे हैं इसमें से ये ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी. these are the 16 पीए, ये 16 है आपके 16 तरीके के जो पीएफ आपको दिए हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए हैं. और यहाँ पर आपको 5 तरीके के बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आपको नहीं लिखना है. ये लिखना है आपको 11 सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स. लाइक अपार्ट फ्रॉम द 16 यहाँ पर आपको
ये जज करना है, मतलब ये लिखना है। न्यूरोटिज्म है, सब्जेक्टिविटी है, अल्ट्रूइज्म है, सेल्फ डिसिप्लिन है, डेलिब्रेशन है और कंसाइंस है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमारे पास निकल कर आते हैं रिलेटेड विद द कैटल। ऑन द अदर साइड, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द कैटल देयर आर द अदर एक्सपेक्ट विच आर रिलेटेड विद द बेल एडजस्टमेंट थ्योरी या बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। बेल के ऊपर भी क्वेश्चन बना है, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से आया है बेल इन्वेंट्री। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा आई होप। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, this one, the Bell Adjustment Inventory. Bell Adjustment Inventory that was developed by the Bell 1934, जिसमें एम है डायग्नोस करने के लिए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। प्लीज नोट इट डाउन that why we are using the Bell adjustment inventory. So we are using the Bell adjustment inventory to diagnose the adjustment problems of individual and a test of personality that assesses the individual adjustment in a variety of situation, that how you are able to adjust. So on the basis of adjustment we are giving the marks, we are giving the grades उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जाए कि आप होम में किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हो, हेल्थ के बेसिस पे, सोशल, इमोशनल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दी बेल। तो बेल ने इन होम में, हेल्थ में, सोशल में, इमोशनल में, इमोशन मतलब सेल्फ रिलेटेड, यहाँ पर हम इससे रिलेट कर रहे हैं। For the instance, the home adjustment is expressed in the terms of satisfaction or dissatisfaction with the home life. कि मतलब होम में आप कितना अपने आप को सेटिस्फाई फील कर रहे हो, जो नीड आपकी है वो आप नीड अपने घर में फुलफिल कर पा रहे हो, यू आर लिविंग हेल्दी लाइफ इन दी होम। तो वो होम लाइफ कैसा है, आर यू लिविंग दी एंड लीडिंग द सेटिस्फैक्टरीली लाइफ और डिससेटिस्फैक्टरीली। तो उस केसेस में सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन क्या है, तो यू आर मेंशनिंग। ऑन द अदर साइड, हेल्थ रिलेटेड एडजस्टमेंट में द टर्म्स ऑफ शाइनेस, सबमिसिवनेस एंड इंट्रोवर्जन, ये देख रहे हो कितना शाय हो, कितना सबमिसिव हो, कितना आपका ऐसा इंट्रोवर्टेड नेचर है, यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, तो उसमें आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो वो जज करें। इमोशनल एडजस्टमेंट इज असेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डिप्रेशन एंड नर्वसनेस, कि आपको कितना डिप्रेशन है, क्या नर्वसनेस है, तो उसके बेसिस पे जज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आता है कि इसी में ही 140 आइटम्स होते हैं विच आर आंसर इन द येस और नो फॉर्म में, और इट इज हाईली रिलायबल एंड वैलिड एंड इट हैज बीन अडेप्टेड इन द वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे 140 आइटम्स होते हैं, 140 क्वेश्चंस होते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस में मिक्सचर होता है रिलेटेड विद द होम, रिलेटेड विद द हेल्थ, रिलेटेड विद द स्कूल, रिलेटेड विद द इमोशनल या सेल्फ। तो वो स्टेटमेंट्स आप जैसा फील कर रहे हो आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क करना होता है, टिक करना होता है, और उससे आपका एडजस्टमेंट पता चलता है इन द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर what you need to mention, you only need to mention the upper paragraph, ये जो लिखा है ना ऊपर वाला, the test was developed by the Bell, ये आप लिख सकते हैं। ऑल्सो साइमल्टेनियसली आप एक छोटा सा एक ऐसा ग्रिड बना सकते हैं जिसके अंदर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट लिखा है, सो यू वुड एबल टू रिकॉल कि किसकी बात हो रही है, किस तरीके के एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कितने स्फीयर में। ये सारी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। हमने एक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के बारे में समझा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टाइप। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द कैटल 16 पीएफ, देन बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। अब यहाँ पर आता है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री इज अनदर काइंड ऑफ इन्वेंट्री जिसको सीपीआई से डिनोट करें। 1957 में ओरिजिनल तरीके से डेवलप की गई थी, रिवाइज की गई थी यहाँ पर इस पर्सन के द्वारा, साथ के साथ गफ के द्वारा 1987 में। And it measures the normal traits of personality. It describes the individual the way the others see them, कि वो किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं। Like implementer, supporter, visualizer, innovator। तो ये 4 कैटेगरीज में हम इंडिविजुअल को असेस कर रहे हैं। द कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री प्रोवाइड अ रेंज ऑफ पर्सनल और वर्क रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटिवेशन, थिंकिंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल्स who take the test, and it also tells that how the people manage themselves and deal with the others. So it consists of the 18 skills, and each of which is designed to forecast what a person will say or do under the defined conditions. Suppose आपको एक बड़ा सा एक स्केल दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें सारे क्वेश्चंस हो,
अब उस वो क्वेश्चंस आपके टीचर रिलेटेड है, जैसे कि हमारे क्लासरूम में होता था जब नैक की असेसमेंट होती थी, तो ड्यूरिंग द नैक असेसमेंट टीचर्स का भी एक इवैल्यूएशन होता था कि क्लास में टीचर्स कितना सही पढ़ा रही है, हर एक टर्म्स में, कितने टर्म्स में, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास का एक पंचुअलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस का कंप्लीशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, डाउट क्लियरिंग, तो ये सारी चीजें, तो उसके ही बेसिस पे हम अब टीचर को जज कर रहे हैं. सो दे आर द whenever we are judging the teacher, we are judging in the 4 lifestyles, 4 parameters पे: supporter, implementer, innovator, visualizer. You only need to mention the name mention कर, ठीक है. मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप देख सको. ये देखिए, this is a picture. Also see, there are the different quadrants like alpha quadrant, beta quadrant, delta quadrant or gamma quadrant. Here the rule favoring like stability agrees with the others, and the rules questioning has personal value systems often disagrees with others. तो ये एक तरीके का continuum है. So in the continuum यहाँ पर एक बीटा quadrant बना, तो बीटा quadrant में supporter है. supporter मतलब rule favoring like stability, agrees with others and focus in inner life, values own privacy, ये हमारे पास आता है, तो बीटा क्वाड्रेंट वो कहलाता है. इसके साथ साथ हमारे पास आता है विजुअलाइजर. विजुअलाइजर डेल्टा क्वाड्रेंट. डेल्टा क्वाड्रेंट मतलब रूल that are questioning, has personal value system that often disagrees with the others, तो ये हमारे पास है विजुअलाइजर. गामा क्वाड्रेंट इन दोनों के बीच में, यानी कि that initiates the action, confident in the social situations and rule questioning has personal value of the system that often disagrees with the other. मतलब इनोवेटर है, कुछ नया करना चाहता है. तो आप इसमें सिर्फ नाम लिख सकते हैं, लाइक इम्प्लीमेंटर, सपोर्टर, विजुअलाइजर, इनोवेशन, क्योंकि ये याद भी नहीं रहेगा आपको. यू ओनली नीड टू मेंशन द नेम. 4 लाइफस्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है: इम्प्लीमेंटर, सपोर्टर, इनोवेटर, विजुअलाइजर. ठीक है, नाम लिख लो जरा, इसमें इंपॉर्टेंट है ये. आर यू अंडरस्टैंडिंग ना सारी चीजें? If you have any doubt, so you may ask. That we are trying to categorize each and every inventory under the heading. तो ये इन्वेंट्री के अंदर ये सारी चीजें आ रही है. सो अंडर द इन्वेंट्री यहाँ पर आपके पास ये निकल कर आ रहा है, ठीक है, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री. तो आप इसमें नेम मेंशन कीजिएगा. इसके अलावा यहाँ पर आता है एक अनदर इन्वेंट्री जो है MMPI. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. काफी बार एग्जाम पूछा गया है, इसका नेम यहाँ पर आया है. 1 सेकेंड, दिस वन. ये दिख रही है स्क्रीन आपको, शो हो रही है? इज दिस विजिबल स्क्रीन? Yes, madam. ओके, तो ये दिस इज अ स्क्रीन रिलेटेड विद MMPI. MMPI, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMPI? जिसमें है मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय हैथवे, एंड हमारे पास जो हैथवे के थ्रू यहाँ पे डेवलप किया है, एंड मैकलिनरे in 1940s, and it contains a 550 items that answer the yes or no and can't say. वही 3 तरीके के स्केल्स में, 3 वैलिडिटी स्केल्स पे, 1 2 3, यानी कि yes, no and can't say, उसके बेसिस पे यहाँ पर जज किया जा रहा है. एंड ऑल्सो दे आर द डिफरेंट एक्सपेक्ट लाइक दिस वन. यहाँ पर एक देखा जाए, अगर एक पर्सन हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, मतलब इट मेजर्स अ पर्सन्स टेंडेंसी फॉर एक्सेसिव एंजाइटी अबाउट फिजिकल हेल्थ एंड फंक्शनिंग, कि आपके अंदर एक तरीके का सबसे एक्सेसिव एंजाइटी है अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, अपनी फंक्शनिंग को लेकर. तो ऐसे पर्सन को ऐसे पर्सन को यहाँ पे हाइपो जो कॉन्ड्राइसिस कहा जा रहा है. देयर इज अनदर थिंग विच इज नोन टू बी द डिप्रेशन दैट इट मेजर्स द अफेक्टिव डिसऑर्डर्स लाइक सैडनेस, डिक्रीज इन प्रोफिशिएंसी, इंटरेस्ट एंड एनर्जी. कि मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको सैडनेस है, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी प्रोफिशिएंसी को डिक्रीज कर चुका है, तो वो डिप्रेशन के क्या ट्रेट्स है? कन्वर्जन हिस्टीरिया वाले पर्सन, मतलब भूलने का, मेंटली दे आर स्ट्रगलिंग, मेंटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली दे आर इन द कन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी. साइकोफेटिक
जो डेविएट्स मतलब दैट मेंशंस अ पर्सनस टेंडेंसी फॉर वायलेशन ऑफ द सोशल एंड नॉर्मल जो मोरल नॉर्म्स है कि जिनको बार बार आदत है अपने रूल्स को तोड़ने की. देन masculinity femininity that it detects a person tendency to perform extreme sex roles कि आप एक्सट्रीम ही या तो क्योंकि वी आर ईच एंड एवरी वन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अनीमा एंड एनिमस. आपको पता है ना अनीमा एंड एनिमस क्या है? मैम मैन लाइक वुमन लाइक क्वालिटीज इन मैन एनिमा एंड मैन लाइक क्वालिटीज इन वुमन एनिमस. ओके सो ये जो क्वालिटीज है विद द मेन एंड द विमेन बोथ हैव दिस द क्वालिटीज ऑफ अपोजिट जेंडर अपोजिट सेक्स. तो वो हमारे पास एक मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी का जो कंसेप्ट निकल कर आता है. तो उस केस में फिर मतलब एक एक्सट्रीम ही कर रहे हैं. मतलब फेमिनिटी है तो एक्सट्रीम ही फेमिनिटी है, मस्कुलिनिटी तो एक्सट्रीम ही है. और तो ये गलत है. तो एक तरीके का उसके बेसिस पे हम जजमेंट. ऑल्सो देर इज अ पैरानोया. पैरानोया मतलब डिल्यूजनल एक्सपेक्ट है. परसिक्यूशनल टेंडेंसीज एग्नोस. तो यहाँ पर एक तरीके से हमेशा पैरानॉइड होना, घबराए हुए घूमना, जैसे कि डिल्यूजन में रहना. तो ये आपके पास है. एक हमारे पास यहाँ पे बताया गया है साइकिथीनिया. मतलब साइकिथीनिया द मेंशंस द पर्सन टेंडेंसीज फॉर ऑब्सेशन एंड कंपल्शन एंड फोबिया. कि किसी चीज से ऑब्सेशन होना, किसी चीज से कंपल्शन होना, फोबिया होना. तो ये आपका निकाला है इसमें. इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया या मतलब मेंशन द टेंडेंसी फॉर द एबनॉर्मल बिहेवियर एंजाइटी. मतलब एक पैनिक अटैक आ जाना, एंजाइटी होना, एबनॉर्मल एक बिहेवियर शो करना. तो वो स्किज़ोफ्रेनिया है. इसके अलावा हमारे पास आता है हाइपोमेनिया दैट मेंशंस द इमोशनल एक्साइटेबिलिटी, ओवर एक्टिविटी एंड द फ्लाइट ऑफ आइडियाज. वेरी इंपॉर्टेंट. एक सोशल इंट्रोवर्जन है. सोशल इंट्रोवर्जन मतलब शाइनेस है, दूसरों से घुलना मिलना नहीं पसंद कर रहे. द अवॉइडेंस ऑफ द अदर पीपल एंड द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, दैट सोशल इंट्रोवर्जन. ठीक है. तो यू ओनली नीड टू मेंशन द नेम. यहाँ पर जितने भी नेम लिखे हुए ना आपको यहाँ पे लिखने. ऑल्सो इफ यू वांटेड टू मेंटेन द शॉर्ट नोट तो आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं. ठीक है. और इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स 1 से लेके 0 ये बताए गए. और इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं ये आपको याद नहीं करने. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको बस ये समझना है कि हाइपो कॉन्ड्रियासिस मतलब कंसर्न विद द बॉडली सिम्टम्स. डी मतलब डिप्रेशन. हिस्टीरिया मतलब HI से नोट करते हैं एब्रीवेशन में. PD मतलब साइकोपैथिक एंड डिविएट. इसके अलावा हमारे पास MF है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी दैट स्टीरियोटाइपिकल मैस्कुलिन ऑफ द फेमिनिन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स एंड सो ऑन. तो आपको ये मेंशन करना है. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में डाल देना और ऊपर हेडिंग लिख देना MMPI विद द फुल फॉर्म एंड विद द ईयर कब आया था. तो ईयर क्या है हमारे पास 1940s में आया एंड इट कंटेन्स 550 आइटम्स. 550 आइटम्स इधर से स्पेलिंग कह रहा 550 आइटम्स. तो ये 550 है टोटल. अगर इससे भी ज़्यादा अगर देखें तो हमारे पास या कैलकुलेशन करोगे तो उसी के अराउंड आपको भी दिख जाएगा. ठीक है. तो ये सारे आते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या है मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री? ओनली नीड टू मेंशन द नेम. ठीक है. नाउ इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट्स देखने को मिलता है दैट ऑल दिस स्किल्स दो आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली यूजफुल एंड आर मोर और less accurate in describing and identifying the different personality trait. They do suffer from the many defects. So in this case there are some merits and demerits. Merits क्या है? That the foremost characteristics of inventory is that it is a quick measure of personality. मतलब सबसे क्विक है. मतलब आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल को उसी के बेसिस पे दिखा सकते हो. उसको जैसे कि अगर आप यहाँ पर आप किसी ऐसा पर्सन आपके सामने है जो कि प्रॉब्लमेटिक है तो उसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेश्चंस उसको आप जज कर सकते हैं. कुछ मेजर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स और उसको नंबरिंग कर सकते हैं. तो वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सबसे क्विक असेसमेंट है एंड इट अफोर्ड्स असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सेवरल पर्सन द वन टाइम एंड द पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज आर यूज्ड बोथ इन द क्लिनिकल सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन. मतलब इट इज नॉट नेसेसरली कि हमेशा क्लिनिकली तरीके से करें, नॉर्मल सिचुएशन में भी इज ऑल्सो पॉसिबल. There are some demerits that since inventories measure the personality in the terms of discrete trait, they become unscientific. क्योंकि discrete trait है, continuous तो है नहीं, discrete है, on the basis of characteristics we are judging. तो उस cases में इसका एक सबसे बड़ा demerit है. Personality cannot be explained in the terms of the discrete trait, but it is a totality, so it should be measured as a whole. एज अ होल मेजर करना है, किसी एक ट्रेट के बेसिस पे मेजर नहीं करना है. तो वो इसका एक सबसे बड़ी एक कमी है.
इट कैन बी यूज बाय द लिटरेट पीपल. अगर पढ़ना आ रहा है तो ही आप इस टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आप इलिटरेट है, सो यू नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, यू विल नॉट एबल टू यूज द टेस्ट फॉर असेसिंग द पर्सनैलिटी. तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स आ जाते हैं. ठीक है, आपको ये लिखना है. यहाँ तक समझ आया? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? सो मैं आस्क. Any doubt? I hope I'm audible. नो मैम. Yes, ma'am. Clear है? Okay, आगे देखिए. अब ये सारे these are the personality inventory. You only need to mention the name with the year, with the full form of each and every test with certain traits. That's it. इसके अलावा अनदर हमारे पास है प्रोजेक्टिव मेथड्स. अब ये अनदर कैटेगरी है. पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के बाद प्रोजेक्टिव मेथड्स है. प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या है? So projective methods are the based on the principle of projection. मतलब that it is a kind of defense mechanism in which a person projects his or her own desires, needs and feelings onto the other person or object. So ये projective methods है. So we are projecting, जैसे तरीके से कहते हैं ना कि we are projecting, एक imposition हो गया, मतलब एक तरीके से impose कर दिया, अपना जो claim किसी दूसरे पे डाल दिया. तो इस तरीके से हम ये कैसा जो टेस्ट हमारा है प्रोजेक्टिव मेथड, दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट his or her own desire, needs and feelings onto the another person. So in the projective test, a personality is measured in the indirect manner by presenting the person with an unstructured vague stimulus or situation. It is believed that when a person reacts to the such vague and unstructured stimulus or situation, he projects his consciousness, desires, mental conflicts and unethical wants without knowing that he is doing so. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसमें हम ये नहीं कहते कि आओ आपका असेसमेंट होगा, नो, बट वी आर टेकिंग द असेसमेंट अनकॉन्शियसली. अनकॉन्शियस वे में हम एक असेसमेंट ले रहे हैं. तो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड वेग सिचुएशन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये सारे टाइप्स होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के. दीज आर द टेस्ट लाइक एसोसिएशन टेस्ट, कंस्ट्रक्शन टेस्ट, completion test, choice or ordering test and expressive test. There are 5 types of projective test. सबसे पहले the history of projective test क्या है and methods क्या है. Like that is used of the projective technique began with the Leonardo da Vinci, and da Vinci in the 1400 AD selected some children and tested them for the creativity. So he asked them to identify the patterns in ambiguous form and shapes, and this was followed by the Binet in 1800 AD when he tried to measure the passive imagination among the children using the game called Mulatto. तो ये क्या है, सबसे पहले विंची ने यूज किया बच्चे की क्रिएटिविटी टेस्ट करने के लिए, जिसके अंदर ही वाज गिविंग सम द अनएम्बिगुअस फॉर्म एंड शेप्स. तो वो ऐसे जो शेपलेस जो चीज़ें थी, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें थी, वो दिखाई गई और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की क्रिएटिविटी को जज किया गया. लेटर ऑन बायनेट ने उसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया. इसके अलावा इन दिस वन using the game, in the children were shown the ink blots and asked the report what they saw in the blots. In 19 मतलब ये आपको बुलेटो ने दिया तो उसमें यहाँ पे ब्लॉट्स आए. ब्लॉट्स मतलब कुछ इंक के धब्बे, जो इंक के धब्बे यहाँ पर दिखाए गए और उसके बेस पे वो क्या फील कर रहा है वो पूछा गया. In 1879 the Galton prepared the word association test and the young made extensive use of the Galton test for the testing the purposes. And इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर Ebbinghaus that use a sentence completion test और उसके बाद में जाके पर्सनैलिटी मेजरमेंट ये पूरा बना. तो आपको ये सारे लिखने हैं, द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट लिखने हैं. कहानी आप पढ़ सकते हैं लेकिन कहानी इतना नहीं पूछेगा, बेसिकली हिस्ट्री बता रहा है. तो हिस्ट्री के साथ साथ ये आपको पूरा एवोल्यूशन बता रहा है कि किस किस तरीके से बना. ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आया. नाउ सबसे पहले आता है एसोसिएशन टेस्ट. व्हाट काइंड ऑफ द एसोसिएशन टेस्ट इज हियर? लाइक दैट इन्वॉल्व, हाँ बोलो मैम. प्रोजेक्शन जो टेस्ट है हम कह सकते हैं कि ये एक प्रेडिक्शन और फोरकास्ट को कह सकते हैं क्या हम? No, we are not forecasting here, but instead that whatever we feel, we are trying to express with the help of some pictures, with the help of some flashcards. तो मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है, that we are trying to unconsciously think.
मतलब जो हमारे सामने पिक्चर आ रही है तो उसको हम यहाँ पे अनकॉन्शियसली तरीके से क्या समझ रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं अपने आप को, तो वट एवर द इनर फीलिंग्स वी हैव, हम उसको देखना चाहते हैं. जब इनर फीलिंग होगा सो देयर वी विल एक्ट इन अ प्रेजेंट, एंड ऑल्सो देयर आर सम सप्रेस्ड थिंकिंग, द सप्रेस्ड जो हमारे जो ट्रेट्स है, जो हमारे अनकॉन्शियस बिलीफ में है, तो उसको हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे. So we are dealing in the present. We are trying to understand the inner feelings that are in depth, that are not shown by the person earlier. तो जो भी छुपी हुई चीजें उसको उजागर करना चाहते हैं, तो उसके लिए we are using. ठीक है, ठीक है. अब इसके अंदर देखिए क्या है, that association test में this is a first kind of test, like that involve the presentation of vague and unstructured stimulus, and the person is required to respond what he sees and with what he associates that stimulus. कि एक पर्सन क्या एसोसिएट कर रहा है उसके साथ, एसोसिएशन है. Like the word association test and the Rorschach test are the two main types of test. Word association test is what? Like if I am giving you the word chair, आपको चेयर दे दिया वर्ड, अब उस चेयर के बाद आपका जो कौन सा वर्ड आपके माइंड में आ रहा है सबसे पहले, अब वो बताएंगे. तो उससे आप पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या थिंक कर रहे हैं. तो आफ्टर रीडिंग द स्टिमुलस वर्ड you will मैम react. टेबल. हाँ, वेरी गुड. टेबल कुड बी, बिकॉज मतलब एक ऐसा टेंडेंसी है कि वी वांटेड टू सी द थिंग्स इन पेयर. हम इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम अगर चेयर टेबल कह रहे हैं तो हम एक हमेशा पेयर में चीजों को देखते हैं. तो आपका जो अनकॉन्शियस चीज है ना वो बाहर निकली. ठीक है, इसी तरीके से अगर पर्सन यहाँ पे कह देगा कुछ और, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस मतलब कुछ अलग तरीके से बताएगा, तो उससे उसका प्रिडिक्शन हो सकता है. तो वी आर ट्राइंग टू सी कि व्हाट आर योर इनर कॉन्शियसनेस फील, आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है वो कैसा फील करता है. सो हियर इफ यू आर सीइंग द टेबल, सो दिस रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ पेयरिंग, that represents that you wanted to see all the things in pair. You are very holistic person, you wanted to see the things that are combined, that are joined together, you are not taking the things separately. तो वो एक तरीके का वर्ड एसोसिएशन से पता चला. दूसरा हमें यहाँ पे बताया गया है Rorschach टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं. सो सबसे पहले देखिए, एक एक हम मार्क करेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. Rorschach test, the test was developed by the Swiss psychiatrist Hermann Rorschach. Please note it down the full name of the person. जिसमें 10 कार्ड है, 10 कार्ड यानी कि 10 कार्ड्स bearing the ink blots of varied shapes on them. एक इंक ब्लॉट जो इंक के धब्बे है, वो धब्बों से बना 10 तरीके के कार्ड्स है. 5 of 10 cards are black and white, while the remaining 5 are colored. 5 रंग वाले हैं, 5 black and white में है. All the cards are presented to the subject one by one. हर एक तरीके के कार्ड को आपके सामने वन बाय वन करके प्रेजेंट किया जाता है. And the subject is free to hold, move and twist the card in a manner he likes. मतलब इसमें रिजिडिटी नहीं है किसी तरीके की, मैं आपको अगर एक सीध में कार्ड पकड़ाऊं तो आप उसको पकड़ के बैठेंगे नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मूव भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सी कि मतलब ये पिक्चर क्या कह रही है, मतलब आपको क्या इसमें पैटर्न दिख रहा है, किस तरीके का आपको यहाँ पे इंक ब्लॉट का कुछ एक साइन दिख रहा है, कुछ इमेज दिख रही है, तो आप उसको अपने अनुसार ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं. द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट ही और शी what he sees in the card and whether it is a part of the card or a whole of the card. मतलब एक part of the card से दिख रहा है या फिर whole of the card से दिख रहा है, जो उसको उस पिक्चर में शो हो रहा है वो उसको बताएगा. अब जैसे कि ये पिक्चर है, is this visible? यहाँ पर अब देखो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. ठीक है, अब इस केस में आप पहला पिक्चर देखो क्या शो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू क्या दिख रहा है. फर्स्ट इमेज में ये इंक ब्लॉट है. मैम एक मास्क जैसे. हाँ मैम एक मास्क जैसा लग रहा है. ओके, मास्क जैसा हो सकता है. ठीक है, एनी अदर कोई और यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है इसमें, अकॉर्डिंग टू यू क्या दिखता है. मैम मुझे कि बैट जैसा लगता है, बैट. हाँ हाँ वो हो सकता है. गुड, यहाँ पर किसी को बैट यहाँ पे शो हो रहा है, मास्क जैसा है, एक जो क्रिश का जो एक मास्क होता था जो पहनता था वो भी दिख सकता है. तो अलग अलग तरीके से है. तो ये आपको इंक ब्लॉट्स दिए जा रहे हैं जो आप उसको प्रिसीव करते हो उसको देखकर. आगे देखो और क्या कह रहा है. आगे कह रहा है यहाँ पर that all the responses are recorded and analyzed according to the letter symbols which are given as below. अब इसमें क्या है, जो आपका रिस्पॉन्स आया, जैसे कि आपने यहाँ पे बैट बताया, आपने वहां पे मास्क बताया,
अब उस केसेस में यहाँ पे मैं आपको जो नंबरिंग करूंगी, जो रिकॉर्डिंग होगा, जो एनालिसिस होगा, वो लेटर सिंबल्स के फॉर्म में होगा। वो कैसे? सबसे पहले आता है लोकेशन। लोकेशन मतलब दैट इट टेल्स इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट और होल ऑफ द ब्लॉट। सो हियर यहाँ पर लोकेशन में होगा जिसमें W इज यूज टू डिनोट द होल ऑफ द कार्ड and D is used to denote if the response is determined by the half of the blot or more। मतलब अगर आपने पूरा पिक्चर देख के बताया ना, पूरा जो पिक्चर देख के बताया, तो आपने इसको बेट कहा, आपने इसको यहाँ पे मास्क कहा, तो उसके बेसिस पे आई एम गिविंग यू दी सिंबल W। जैसे कि आपने उस पूरी पिक्चर को यहाँ पर देखा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फील हुआ, आपने उसको परसीव करते हुए बताया, तो इस केस में आई एम गिविंग you the symbol W। I am analyzing your performance with the help of the symbol W। ठीक है, ये आप W लिख सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे, और इसमें लिख सकते हैं W मतलब होल ऑफ द ब्लॉट। ठीक है, होल ऑफ द ब्लॉट W, ऐसे करके W करके होल। ठीक है, नेक्स्ट D is what? D मतलब if you seeing the picture and determine what you are seeing by considering the half of the blot। हाफ के लिए आप डिनोट करें D, हाफ D, D यहाँ पर होएगा हाफ, हाफ लिख लेना इसके आगे। W stands for whole, D stands for half। Now and the DD is used for response that is determined by some small details and out of the small portion of the card। अब ये DD जो यूज किया जा रहा है ना, DD यूज किया जा रहा है अगर आपने पिक्चर को प्रोजेक्ट किया है विद सम स्मॉल डिटेल। मतलब अगर आपने कुछ स्मॉल डिटेल इसमें देखा, कई लोगों को यहाँ पे अगर स्मॉल डिटेल देखने को मिलेगा तो वो कुछ इस तरीके से, अगर आप स्मॉल डिटेल देख रहे हो ना, तो मुझे इसमें से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कोई बटरफ्लाई बना है या फिर एक तरीके का कोई वुमेन है जो उसने यहाँ पे फ्रॉक पहना है, तो ये स्मॉल डिटेलिंग से है। तो स्मॉल डिटेलिंग से इंटरनली अगर देखा जा रहा है तो उस केस में यहाँ पर आप उसमें कैसे दोगे? DD वुड बी यूज, DD सिंबल वुड बी यूज। तो लोकेशन में क्या क्या आ रहा है ध्यान रखना, अंडर द लोकेशन D W DD फॉर स्मॉल पोर्शन, स्मॉल के लिए होता है। ठीक है, देन देयर इज अ S इज यूज्ड टू डिनोट फॉर रिस्पॉन्स determined responding to certain spaces in between the figure। कुछ स्पेसेस है, जैसे कि यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह है, तो उन खाली जगहों से आप कुछ परसीव कर रहे हैं, तो उस खाली जगह को हम कह रहे हैं S से, वी आर डिनोटिंग विद S से डिनोट करें। तो ये समझ आ रहा है किस तरीके से हुआ? S मतलब स्पेस। ठीक है, तो ये लोकेशन में से निकल के आए सिंबल्स। नाउ देयर इज अनदर, आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स ना? समझ आ रहे हैं? W DD, हाँ लिख लेना इसको प्लीज। W stands for the half, यहाँ पे W stands for the whole, D stands for half, DD stands for, यहाँ पे DD is used for the small details, small, and the S stands for what? The spaces। ठीक है, ये लोकेशन का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स। Determinants that it tells which feature of the card is responsible for response। Like for example, the subject responds butterfly, so now it has to decide that which feature of the card, that is the form, color or movement, is responsible for the response। So 24 letter symbols are used for the purpose। So F for the instance is used for form, C is for the color, and M for the human movement, and FM for animal movement। तो किस बेसिस पे आपने बटरफ्लाई कहा है उसको? आर यू कंसिडरिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम द फॉर्म और कलर, या किसी मूवमेंट के बेसिस पे, या किसी मतलब एक तरीके से आप फॉर्म या कलर या फिर ह्यूमन मूवमेंट या फिर एफएम एनिमल मूवमेंट के बेसिस पे जज कर रहे हो, तो उसके लिए सारे सिंबल्स दैट कम्स अंडर द डिटर्मिनेंट्स, वो डिटर्मिनेंट्स में है। Apart from this, there is a content। Content यानी कि tells about the content of the response। Like if the content is human, then H is used and the A is for animal content। कि content कैसा है, जैसे कि if you are perceiving the picture somewhere, कोई किसी पिक्चर में अगर उसको पूरा human दिख रहा है, if the person is seeing the face of the human, तो उस केस में human would be the code, तो H आप डिनोट करेंगे। Animal दिखता है तो A।
ये सारे यू नीड टू मेंशन. आई एम आफ्टर द क्लास आई विल सी कि आप किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि इसमें ना मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा रोशेश इंक ब्लॉट टेस्ट के ऊपर, दैट हाउ मेनी द कार्ड्स आर देयर and on the basis of the cards what kind of the symbols we are using to denote and to analyze the performance of the individual, उसके basis पे what letter represents what, तो वो उसमें क्वेश्चन बन जाएगा in the form of matching. That's why I am emphasizing this point बार बार कि आप इसको अच्छे से नोट्स मेकिंग करें. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट द ओरिजिनल रिस्पॉन्स एंड organization. Like the original response means a response that frequently given by the people to that card and is called the popular response, which is noted by the P for popular, कि हर कोई उसको बैट कह रहा है, हर कोई उसको मास्क कह रहा है, तो वो ओरिजिनल रिस्पॉन्स है. और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम किससे डिनोट करें, P से डिनोट करें. That once this process of the letter assigning is complete, so the symbols are analyzed and interpreted. And for example, the prominence of the W response indicates a person has a high intelligence and the power of abstract reasoning. So the D is indicated of the ability to see and understanding the things, the clear manner, and DD should not be the more than the 5% of the total responses. DD higher than this indicated of the symbols of schizophrenia. अगर नंबर हम देख रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को असेस कर रही है, बार बार डीडी शो कर रहा है. डीडी अगर आपको शो कर रहा है, डीडी मतलब यहाँ पर क्या था, डीडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, हैव यू रिटन? डीडी मतलब स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स आउट ऑफ द स्मॉल पोर्शंस. तो इफ यू आर सीइंग द स्मॉल पोर्शंस ओनली, तो इट्स अ काइंड ऑफ द साइन कि स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब जिसमें साइकोलॉजिकल डिजीज है. वी आर नॉट एबल टू सी द होल, वी आर ओनली स्टिकिंग आउटसाइड विद द पार्ट्स, तो पार्ट्स को ही देख रहे हैं. तो एक तरीके का एक डिजीज हमें है. अगर बार बार डब्लू शो कर रहा है तो मतलब हाई इंटेलिजेंस है, पूरी की पूरी पिक्चर प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो डब्लू आपके ज़्यादा नंबर्स में दिखने को मिल जाएगा शीट में. इसके अलावा आपको अगर यहाँ पर ये जो साइन दिख रहा है डी, डी इज ऑल्सो द इंडिकेटिव ऑफ द एबिलिटी टू सी द थिंग्स इन अ क्लियर मैनर. तो ये आपके टेस्ट के रिजल्ट्स निकल कर आते, तो इस तरीके से आपको बताया हुआ है. ठीक है, ये है. इसके अलावा ये अलग अलग कार्ड्स है. देखो जैसे कि कार्ड 1 आपका पॉपुलर रिस्पॉन्स है, हर कोई बैट कहता है, कोई बटरफ्लाई कहता है, कोई मॉथ कहता है. इसके अलावा यहाँ पे पॉपुलर रिस्पॉन्सेज है दैट 2 ह्यूमंस 4 लेग्ड एनिमल डॉग. ये देखो यहाँ पे दिखने भी लग गया. कई लोगों को यहाँ पे दिख रहे होगे ना, 2 लोग टोपी पहने हाथ मिला रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा होगा. तो यानी कि 2 पॉपुलर रिस्पॉन्सेज, मतलब ये यहाँ पे बताया कि 2 ह्यूमंस 4 लेग्स एनिमल डॉग. डॉग यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, हाँ डॉग होगा. ठीक है, इसके एलिफेंट बियर तो कुछ भी दिख सकता है. इसके अलावा कार्ड 3 में पॉपुलर रिस्पॉन्स है 2 ह्यूमंस है, 2 तरीके के ह्यूमंस है. यहाँ पे दिख रहे ह्यूमंस फिगर कुछ दिख रहा है ना, टोपी देखो कैप पहने हुए दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे. इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, कार्ड नंबर 4 की इसमें एनिमल का कुछ स्किन है, कुछ रग है. हाँ एनिमल का स्किन लग रहा है, कुछ रग लग रहा है, यहाँ पर खाल लग रही है. इसके अलावा पॉपुलर रिस्पॉन्सेज यहाँ पे बैट है, बटरफ्लाई है और मॉथ यहाँ पर है, देखो ये बना हुआ है. कार्ड 6 में आता है कि पॉपुलर रिस्पॉन्स एक एनिमल हाइड स्किन, यहाँ पर रग लिख सकता है. यहाँ पे ह्यूमन फेसेस शो कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया हुआ कि अलग अलग कार्ड्स है. इसके अलावा यहाँ पर तो नहीं आपको बताया, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, सारी की सारी चीज़ें. ये आपका हो गया गुडनेस ऑफ द फिट टू फॉर्म ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ द नो. ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप देखना चाहते हो तो लिख सकते हैं. बस इसमें क्या है, स्कोरिंग आनी चाहिए. जैसे कि हम एनिमल कंटेंट की बात करें ना, तो 0 से लेके 2 तक का स्कोर है. ह्यूमन कंटेंट की बात करें 0 से 2 तक का. इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन द 2 एंड मोर सेपरेट. मूवमेंट मतलब 1 से 4, शेडिंग मतलब 1 से 2. मतलब ये स्कोरिंग है कि कितने से कितने स्केल पर हम स्कोर कर सकते हैं. आपको एक कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो मैंने सिंबल बताया वो लिखना है, सारी की सारी चीजें वो सिंबल देखना है, और इसके साथ साथ इनका नेम देख लेना. और 10 तरीके के कार्ड होते हैं, 5 कलर, 5 वो आपके जो ब्लैक एंड व्हाइट, सिंपल तरीके से. हाँ कुछ कह रहे हो, कोई डाउट है? नो मैम. ठीक है, तो ये आपको देखना है. ठीक है, इसके अलावा आई एम सेंडिंग यू द 1 क्वेश्चन ना रोशेश इंक ब्लॉट टेस्ट से रिलेटेड, आप इसे रिलेट करोगे. 1 सेकेंड, लेट मी सेंड यू. जब तक इफ यू वांटेड टू राइट समथिंग ना फ्रॉम द इस स्लाइड से आप लिख सकते हो. आई एम सेंडिंग यू 1 क्वेश्चन. दिस इज द MCQ फ्रॉम द टेस्ट सीरीज.
इसमें जरूर वो क्वेश्चन आएगा. See this very 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 important question. The question is relating with the trait of the Rorschach test. तो आपको ये बताना है. Previous year question and very simple question. This one. What should be the right answer? ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया. एंड ऑल्सो if you wanted to mention the, ये कोई स्क्रीनशॉट ले दो इसको ना, स्क्रीनशॉट लेकर ये आप अपने सेंड कर सकते हो. ये ना होल्समैन का मैनुअल है. होल्समैन का मैनुअल दिया हुआ है आपको, उसके अंदर ये डिफाइन करेंगे HIT कोर वेरिएबल्स. तो सारे कोर वेरिएबल्स है, लाइक R स्टैंड्स फॉर रिजेक्शन, L स्टैंड्स फॉर द लोकेशन, F स्टैंड्स फॉर फॉर्म जो डेफिनेटनेस. तो ये आप लिख सकते हो, इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा लो. ठीक है. हम ऑप्शन 1. ऑप्शन थर्ड. ओके सो हियर 5 तरीके के कलर है, 5 तरीके के आपको यहाँ पर कौन से दिए हुए, ब्लैक एंड व्हाइट है. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एंड ऑल्सो इंक ब्लॉट टेस्ट यूज बाय हुम द रोशेश ने यहाँ पे यूज किया है. तो इस तरीके से सिंपल हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज अ वन क्वेश्चन. मैम इसका आंसर थर्ड होगा ना? हाँ, जिसमें 5 ब्लैक एंड व्हाइट है, 5 वो आपके जो कलर्ड. हाँ, वही उसका आंसर हो जाएगा. इसके अलावा ना यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक शेडिंग आ रहा है, that it is scored when the subject uses a shade in the ink blot for the creation of the answer. कि जब आप यहाँ पे शेड का यूज करो क्रिएशन करने के लिए आंसर को. तो आई एम सेंडिंग यू दी वन क्वेश्चन रिलेटेड विद द डिफ्यूज शेडिंग स्कोर. तो आपको देखना है ये, ठीक है. इसको लिखना है. ये देखिए जरा कि शेडिंग मतलब क्या है. मैं इसको समझा भी देती हूँ वन बाय वन करके. लाइक हियर सबसे पहले रिजेक्शन. लाइक रिजेक्शन मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ इंक ब्लॉट्स विदाउट अ स्कोरेबल रिस्पॉन्सेज. की मतलब आप यहाँ पर इंक ब्लॉट्स देख रहे हो, कोई स्कोरेबल रिस्पॉन्सेज नहीं है, कुछ ऐसा आपने कुछ सही सटीक आंसर नहीं दिया. लोकेशन मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ द इंक ब्लॉट टू फॉर्म द पर्सपेक्ट्स. आप लोकेशन वही वाले. फॉर्म डेफिनेटनेस मतलब हाउ इट डेफिनेट द फॉर्म ऑफ द कंसेप्ट दैट इज एक्सप्रेस इन द आंसर, मतलब कितना सटीक बता रहे हो. फॉर्म अप्रोप्रिएटनेस मतलब फॉर्म अप्रोप्रिएटनेस के अंदर आता है गुडनेस ऑफ द फिट टू फॉर्म द कंसेप्ट फ्रॉम द इंक ब्लॉट. फिर आता है सी स्टैंड फॉर कलर, की कलर के बेसिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. शेडिंग मतलब क्या है, इट इज स्कोर्ड व्हेन द सब्जेक्ट यूजेस अ शेड इन द इंक ब्लॉट फॉर द क्रिएशन ऑफ द आंसर. की मतलब शेड का यूज कर रहा है. अब देखो जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि when is diffuse shading scored, the Rorschach ink blot test. So when the light and dark gradation give rise to dimensionally, when the light and dark gradations give the rise to soft, cold, wet sensing quality, when the light and dark gradations contribute to the response. So here the right answer would be what, ये आपको बताना है. So right answer of the question would be the 3, क्योंकि जब लाइट और डार्क जो ग्रेडेशंस है उसमें, जैसे कि जो आप ग्रेडेशंस देख रहे हो अलग अलग, तो उस केस में ये कंट्रीब्यूट करता है रिस्पांस के लिए. तो ये हम रिस्पांस दे रहे हैं इसमें, तो सी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि शेडिंग में यूज हो रहा है. मूवमेंट मतलब एनर्जी जो हम अस्क्राइब कर पा रहे हैं. इंटीग्रेशन मतलब दैट द प्रिसाइज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोर सेपरेट पार्ट ऑफ द प्लॉट. ह्यूमन कंटेंट मतलब प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स एंड ह्यूमन फिगर. एनिमल कंटेंट एनिमल फिगर. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना है ये, आप इसमें देख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब Rorschach इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसमें हमने इंक ब्लॉट का देखा. नाउ इसके अलावा एक आता है कंस्ट्रक्शन टेस्ट. कंस्ट्रक्शन टेस्ट गिवन बाय द थेमेटिक, ये जो टेट टेस्ट है इसको टेट टेस्ट कहते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेट? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट दैट इज डेवलप्ड बाय द मुरे. इसमें 31 कार्ड्स है, which one card is blank while the other 30 cards bear some pictures. तो उस केस में आपको यहाँ पर पिक्चर्स देखकर कुछ बताना होता है कि इसमें कैसा आप उसको सेंस कर पा रहे हैं. जैसे कि हीरो, इफ यू आर सेइंग दैट द पर्सन इज हीरो, तो इसमें हीरो मतलब एक करेक्टर, सेंटर करेक्टर है. नीड मतलब कि हर एक स्टोरी जो रिफ्लेक्ट करते हैं सर्टन नीड, जैसे कि कुछ नीड है इसमें, कुछ एफिलिएशन आप फील कर रहे हो उस पिक्चर में. प्रेस मतलब यहाँ पर कि जिसके अंदर एक तरीके से हेल्पिंग द नीड टू बी फुलफिल्ड, कि आप फोर्स कर रहे हो कि वो नीड फुलफिल हो.
थीमा मतलब इसमें आता है एनवायरमेंटल फोर्सेस, दैट थीमा दैट टेल्स अबाउट द कंटिन्यूटी इन द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। सो इसमें क्या होता है कि not more than the 20 cards are shown to the person, so the test is administered in the 2 sessions. The first session जिसमें 10 कार्ड दिखाए जा रहे हैं, सेकंड सेशन में भी 10 कार्ड दिखाए जा रहे हैं, और 10 कार्ड को 10 कार्ड के देखने के बाद वो पर्सन क्या एक कहानी बना पा रहा है वो बताया जा रहा है। तो वो कहानी कैसी है तो वो आपको खुद इसमें बनानी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। एक होता है कंप्लीशन टेस्ट, जैसे कि मैं आपको आधा सेंटेंस दे दूं, आप पूरा सेंटेंस करें। आई ऑफन थिंक दैट व्हाट, आप क्या सोच रहे हैं तो आप उसमें आंसर, आई विश दैट व्हाट तो आप उसमें आंसर करेंगे, तो ये कंप्लीशन टेस्ट है। एक होता है चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट, आप इसमें चॉइस करते हो जो आप बेटर आपके लिए, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुकीज, तो आप प्रेफरेंसेस लिख रहे हो कि आपको कौन कौन सी कुकीज पसंद है, तो पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा। तो ये आपका ज़ोंजी टेस्ट है, मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है यहाँ पर, और उसके अंदर आपको चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ के लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप उसको प्रेफरेंस दे रहे होते हो। इसके अलावा एक एक्सप्रेसिव टेस्ट आता है। एक्सप्रेसिव टेस्ट आपको यहाँ पर जो बताया गया है वो मैकहोवर ने दिया है 1949 में। दैट इज द क्रेडिट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेस्ट इज द टू द फॉर्मेट ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट एंड हाउस ट्री टेस्ट। तो ये जो एक्सप्रेसिव टेस्ट है यहाँ पर ड्रॉ पर्सन टेस्ट है कि जिसमें आपको कहा आप कुछ बना रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम में आपको कुछ ड्राइंग बनाने के लिए दे दिया, तो ड्राइंग के थ्रू आप अपने आप की जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो एक एक्सप्रेसिव टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। And also the kinetic drawing test, in which the subject is asked to draw what is going on in the family, and the later on the subject is asked to tell in the imagination and otherwise what exactly is happening in the drawing। तो वो बताएगा, जैसे कि यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर तारे ज़मीं पर, तो वहाँ पे वो एक इक्वल बच्चे को चांस दे रहे थे क्लासरूम में आमिर खान कि आपको वट एवर यू फील यू नीड टू ड्रॉ, आपको उसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने पे उसने क्या सोचा, क्या इमेजिनेशन था, फिर हमें पता चला। ठीक है, तो वो एक तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो ये आपको बताया गया। दिस आर द सर्टेन वो आपके टेस्ट। नाउ इसके अलावा देयर इज अनदर एक्सपेक्ट जो यहाँ से निकल कर आता है, वो है इंटरव्यू। ये ऑब्जर्वेशंस वाले हैं। ऑब्जर्वेशंस आपकी अलग टेस्ट है जिसमें एक तरीके का इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन वाली तो तीसरी कैटेगरी थी ना, उसमें आप इंटरव्यू डालोगे। इंटरव्यू जो हम डायरेक्टली ले रहे हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो इंटरव्यू का पार्ट हमारे पास बनेगा, आप उसको इंटरव्यू में डाल देंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, यू ओनली नीड टू मेंशन द नेम, लाइक द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, काउंसलिंग इंटरव्यू। So you only need to mention the name of the interview, and each and every interview is different. Like employment interview, that you know that we are assessing the individual, that the person is fitted for the position or not. Fact finding interview, that we are interviewing the person because we wanted to gather some facts. Diagnostic interview, when we are trying to provide some remediation. Also the counseling interview, that when there is a two-way communication and we are giving give and take kind of relationship, जिसमें एक आपस में we are trying to give the piece of advice. Also यहाँ पे अथॉरिटेरियन वर्सेस नॉन अथॉरिटेरियन पर्सन का भी एक टाइप ऑफ इंटरव्यू है, जिसमें एक क्लाइंट और उसकी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से वो फेस कर रहा है, तो वो उसमें इन्वॉल्व है, तो वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। ठीक है, आप इसको ऑब्जर्वेशन में जोड़ेंगे। मैम एक कैट है क्या, चिल्ड्रंस एप्रिसिएप्शन टेस्ट? Children's apperception test is the different test that comes under the जो उसमें आएगा चिल्ड्रंस के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर एक थीमेटिक का ही अम्ब्रेला टर्म ऑफ थीमेटिक, देन उसके अंदर कैट हम यूज कर सकते हैं। वो एक बच्चे की पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसमें देखिए। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कैट टेस्ट में कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग द कैट टेस्ट, तो कैट टेस्ट में देयर इज अ स्पेसिफिक एज ग्रुप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई एम गिविंग यू दी वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैट, इसको आपको देखना है इफ़ यू वांट टू ऐड, क्योंकि अभी कैट आपके एग्जाम में पूछा नहीं है प्रोजेक्टिव टेस्ट, बट स्टिल जो आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में वही सेम चीज़ है, जिसमें 10 पिक्चर्स आपको वो दी जा रही है एनिमल्स की इन द सोशल सिचुएशन, एंड ऑल्सो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी टेलिंग है, मतलब आपको स्टोरी बतानी है उसके रिगार्डिंग, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एंड ये कैट टेस्ट डेवलप किसने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइकाइट्रिस्ट हमारे हैं लियोपोल्ड बेलाक एंड सोनिया बेलाक, इन दोनों ने डेवलप किया है सेम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यूज फॉर द एडल्ट, और उसके बाद जो चिल्ड्रंस के यूज करे हैं दैट कम्स द कैट। तो आई एम सेंडिंग यू द वन इंफॉर्मेशन, इसको आप देख सकते हैं, यू मस्ट हैव गॉट द इंफॉर्मेशन, मिल गया होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको लिख लेना।
अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ दैट यहाँ पर आ रहा है चिल्ड्रंस एपिसेप्शन टेस्ट, ठीक है। ओके मैम, ओके। ठीक है, ये लिख लेना। ऑल्सो ये हमारे सारे डिफरेंट टेस्ट हैं जो आपने लिखे हैं, यहाँ तक है ये सारे। तो आई होप यू मस्ट हैव प्रिपेयर द नोट्स इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं इसके अलावा, यही सारे टेस्ट है जो हमें करना था। ऑब्जर्वेशन में सारे इंटरव्यूज हमारे आ जाएंगे, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम एज फॉर नाउ? सो आई होप यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स बनाएं तो आप यू कैन शेयर योर नोट्स ग्रुप्स में, ताकि पता चल जाए कि यू आर मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो वी विल मीट विद इन 5 minutes फॉर द नेक्स्ट क्लास। बी रेडी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में विल गोइंग टू रिवाइज यूनिट 3 को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Within 5 minutes we'll meet in another class. Thank you so much.